Assalamualaikum everyone. Welcome to episode 15 of Study Guide. It has been a while since we've last made videos and we're really apologetic for the delay. There have been some problems that have been going on to some technical issues, so इसलिए हम लोग videos नहीं बना सके. However, we are back with another amazing and very informational video for you all, which is on the history chapter languages. In this video we will complete and cover the entire chapter, so watch till the end and we're going to do it with notes and past paper questions as well. Okay जी, तो we're going to begin with the first language, the main and the most important language, which is उर्दू. उर्दू के ऊपर आपको मैक्सिमम पॉइंट्स मिलेंगे अपनी किताब में से भी और वैसे भी. तो यहाँ पे मैं अच्छा जो चीज़ आपने हर लैंग्वेज के बारे में याद करनी है, लेट मी गिव यू अ क्विक टिप ओवर है, और ये है कि आपने हर लैंग्वेज की डेवलपमेंट एंड हाउ इट केम इनटू बीइंग याद रखना है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि उस लैंग्वेज का पॉपुलेशन के अंदर कितना परसेंटेज है, अब उस लैंग्वेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी थी पाकिस्तान के अंदर एट दैट टाइम. ठीक है, तो लैंग्वेजेस का जो चैप्टर होता है ये बेसिकली आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान की बात हो रही होती है. सो उर्दू की बात करते हैं. उर्दू की जो डेवलपमेंट थी, डेवलप्ड एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल सेंटर्स. A dictionary of office terms and Urdu rule was made, medium of television, plays and films. Urdu newspaper, book, poetry and magazines generated the national language. Government of Pakistan developed National Linguistic Authority for Urdu. 1973 Constitution में Urdu as a national and official language was declared. National Language Authority 1979 was promoted. ठीक है, अब ये डेवलपमेंट जो है ये बेसिक पॉइंट्स हैं, ये वो पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए. दिस इज़ दैट 1 मार्क स्टेटमेंट जो आपने देनी है. अब इस डेवलपमेंट का फर्दर कैसे लेके चलेंगे, लेट्स टॉक अबाउट हियर. Explain the choice of Urdu in 1947 as the national language of Pakistan. This is a 7-mark question. Urdu was a unifying force for all Muslims attaining a separate nation. So many prominent leaders such as Zaqat Ali Khan and Quaid-e-Azam gave speeches on independence in Urdu. Thus, Urdu was cleanly promoted and given the status of the national language of Pakistan, as it was believed to be the unifying power behind the nation. So, ये जो पॉइंट है इसमें वो था कि उर्दू वॉज अ यूनिफाइंग फोर्स फॉर ऑल मुस्लिम्स. हाउ वी डेवलप्ड इट, या हमने एक्सप्लेनेशन कैसे दी हाउ इट वॉज अ यूनिफाइंग फोर्स. इसमें स्पीचेस दी गई, इसमें जिन्ना और कायद-ए-आज़म ने लियाकत अली ख़ान और कायद-ए-आज़म ने सेपरेशन प्रमोट की. इस लैंग्वेज के अंदर वो सब हुआ है, और यही वो लैंग्वेज थी जो सबको समझ आती थी. इसलिए उर्दू वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. ये डेवलपमेंट है आपके क्वेश्चन की, आपके आंसर की. दिस इज़ योर स्टेटमेंट, लेट मी मार्क इट आउट. सो दिस इज़ योर स्टेटमेंट, उर्दू वॉज द यूनिफाइंग फोर्स फॉर ऑल मुस्लिम्स. ठीक है, दिस इज़ योर explanation. So many prominent leaders such as Liaquat Ali Khan and Quaid-e-Azam gave speeches in Urdu. ठीक है, and this is the analysis. Thus, Urdu was keenly promoted and given the status of national language. पहले आपने अपनी दोबारा से बात की, दोबारा keenly promoted and given the status of national language as it was believed to be the unifying power behind the nation. Again आपने यहाँ पे अपना analysis शो किया. ठीक है, let's go on to the next point. Urdu was one of the reasons why ideas such as the two-nation theory and Pakistan movement arose in respect to the Hindi-Urdu controversy that woke up so many Muslims to protect their culture and interests. Thus, Urdu was chosen as the national language of Pakistan, as it was widely believed that Urdu was the reason behind awakening the conscience of the Muslims of the subcontinent to call for a separate nation. Now, इसमें वो कहते हैं बड़ा ही बहुत ही वैलिड और बहुत ही अच्छा पॉइंट है. द पॉइंट दैट आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल टू रिमेंबर एंड टू मेंशन टाइम एंड अगेन. अगर उर्दू के ऊपर ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी हुई थी एक, वो हम आगे सेक्शन 2 में भी इसके बारे में बात करेंगे. अभी के लिए आप सेक्शन 1 में ये याद रखें, हमने बात करनी है उसकी. तो उर्दू इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई आइडिया सच एज, ये यहाँ पे जो बात की थी ना इन्होंने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की. हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी वाज द फर्स्ट थिंग जिसने मुस्लिम्स को रियलाइज़ करवाया था कि इंडियंस जो हैं दे माइट ट्राई टू टेक ओवर, हिंदूज़ जो हैं दे माइट ट्राई टू टेक ओवर देयर कल्चर बाय टेकिंग ओवर उर्दू. ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं कि उर्दू वाज वन ऑफ द रीजंस व्हाई द मुस्लिम कंसाइंस वाज वर्कन एंड व्हाई दे स्टार्टेड टू प्रोटेस्ट फॉर ए सेपरेट नेशन. तो अभी इस क्वेश्चन पैराग्राफ में भी look at this simplistic statement, then the explanation, and then the analysis. The simplistic statement was, it was one of the reasons why ideas such as two nation theory in Pakistan movement arose.
ठीक है, इन रिस्पेक्ट टू द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। इन रिस्पेक्ट टू द का मतलब होता है यानी इससे रिलेट करते हुए या इसके मुताबिक या इसके बारे में बात करते हुए मैं बोल रही हूँ कि हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी की एग्जांपल देते हुए मैं बोल रही हूँ कि ये एक वजह थी जिसकी वजह से टू नेशन थे, ये पाकिस्तान मूवमेंट जैसी चीज़ें बनी। दिस मेड मैनी मुस्लिम्स प्रोटेक्ट देयर कल्चर एंड ट्रस्ट। हमने हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी से लेकर यहाँ प्रोटेक्शन तक हमने एक्सप्लेनेशन दे दी। दस उर्दू वाज कंसिडर्ड टू बी अ नेशनल लैंग्वेज एंड ये हमारा एनालिसिस दोबारा आ गया रास्ते में। And then there is this last part, ये भी पढ़ लेते हैं। Another reason why Urdu was chosen as the national language of Pakistan was because of its long history. In early times, it was used by Muslim armies, and it was also widely and used during the Mughal time period. Thus, Urdu was chosen to become the national language of Pakistan due to its long history with the Muslims and their attachment to it. Again, statement क्या थी? Long history. Because of its long history. ये हमारी simplistic statement. In early times, it was used by this person. ये हमारी एक्सप्लेनेशन और ये हमारा एनालिसिस। नाउ कैन यू सी दिस पैराग्राफ? ये सबसे सिंपल सबसे इजीली अंडरस्टूड पैराग्राफ है। इस पैराग्राफ को आप देखें तो आपको पता चल रहा है कि एक एक चीज़ एक एक लाइन में करके फिनिश कर दी गई है। सो दैट इज़ हाउ यू हैव टू राइट योर आंसर। ये मैं आपको कुछ पॉइंट्स की डेवलपमेंट करवाई है। ये जो बाकी के पॉइंट्स हैं इनकी डेवलपमेंट यू कैन ईजिली डू इफ़ यू रीड देम फ्रॉम योर बुक और यू नो इफ़ यू लुक इनटू दैम, या अगर आपको इनकी डिस्क्रिप्शन आती है तो फिर आप इजीली इनकी डेवलपमेंट और एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, ये उर्दू हो गया। आगे चलते हैं पंजाबी, द सेकंड मोस्ट वाइड यूज लैंग्वेज इन पाकिस्तान। इसकी डेवलपमेंट, द गवर्नमेंट सपोर्टेड इंस्टीट्यूशंस प्रमोटिंग इट, रेडियो टीवी इन फिल्म्स प्रमोटिंग पंजाबी नॉवेल्स एंड। अच्छा, पहले मैं आपको बता दूँ डेवलपमेंट से मुराद क्या है। डेवलपमेंट से मुराद है कि पंजाबी का ओवर द टाइम पीरियड क्या पंजाबी कैसे ग्रो किया, कैसे उर्दू ग्रो किया, कैसे सिंधी ग्रो किया, कैसे बलोची ग्रो की। तो उर्दू की हमने बातें की कि कैसे से ग्रो की। 1973 तक इट बिकेम द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज। और पंजाबी की अब हम बात करें तो हम बात करें कि गवर्नमेंट ने प्रमोट किया उन इंस्टीट्यूशंस को जो पंजाबी प्रमोट कर रहे थे। रेडियो टीवी फिल्म्स, ये सारी वो चीज़ें होती हैं ना जिनसे लैंग्वेज प्रमोट हो रही है, तो वो बात होगी। फिर नॉवल एंड अदर राइटिंग, जो जितना पढ़ेगा उसको उतनी लैंग्वेज आएगी। पंजाबी पोइट्री बिकेम वाइडली नोन, टॉट इन यूनिवर्सिटीज़ एंड ऑफर्ड एज ए सब्जेक्ट। जब आप किसी चीज़ को सिखा रहे होते हैं, अगेन इट्स गोइंग टू बी लर्न बाय मैनी पीपल। ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान में मोहम्मद अली फैक, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज़ समथिंग जो कि बहुत कहा जा सकता है कि इतनी हद तक पंजाबी डेवलप होगी या प्रमोट होगी कि कुरान पाक की भी इसकी अंदर ट्रांसलेशन हो गई। फिर आगे चलते हैं सिंधी की डेवलपमेंट में, फिर हम एक फुल क्वेश्चन करेंगे 14 मार्क का। ठीक है, yes. Sindhi Literary Board set up in 1948. Folk literature books written in Sindhi. Bazm Talibul Mola set up in 1958. This is another madrasa कह लें आप, जो कि सिंधी लैंग्वेज को सिखाती थी और पढ़ाती थी। सरमस अकेडमी, इट वाज एन एजुकेशनल अकेडमी जो सिंधी में डेवलप हुई थी। टॉट एज अ सब्जेक्ट इन सिंध, मैनी रेडियो एंड टेलीविजन चैनल्स आर प्रमोटिंग इट। ठीक है, फिर पश्तो कंट्रीब्यूटेड टू अ लॉट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। पेशावर यूनिवर्सिटी promoted Pashto, 1945 Pashto Academy established, Pashto Dictionary established, postgraduate colleges in KPK in Pashto literature, Kaushal Khan Khattak library promoted through Peshawar television radio. So all these points, बलोची की भी बात कर लेते हैं। रेडियो पाकिस्तान कराची ब्रॉडकास्ट इन बलोची, ठीक है, जो कराची के अंदर रेडियो पाकिस्तान है ब्रॉडकास्ट इन बलोची, यानी एक सेक्शन उसका। बलोची लिटरेरी एसोसिएशन क्वेटा टीवी स्टेशन ब्रॉडकास्ट इन बलोची, बलोची लिटरेचर डेवलप बलोची यूनिवर्सिटी इन बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी इन क्वेटा। तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं ना, ये तब हम यूज़ करेंगे जब हम बात करेंगे कि हाँ दिस इज़ हाउ दी लैंग्वेजेस कॉन्ट्रीब्यूटेड या हाउ दिस लैंग्वेजेस डेवलप्ड। ठीक है, आगे चलें। This 14 mark question. Punjabi is the most developed regional language in Pakistan. लो, ये जो भी हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े हैं ये उसी से रिलेटेड सवाल है। 14 मार्क। पंजाबी is the most developed regional language of Pakistan. ये उन्होंने आपको स्टेटमेंट दी है। Explain why you might agree or disagree with this statement. This is a 14 mark question. हमने 14 mark question के अंदर पीछे जाएँ तो हमने बात की थी कि हम रेशियोज़ बनाते हैं लेवल 3 लेवल 4। ठीक है, 1:2 कितने पैराग्राफ्स होते थे? 7 पैराग्राफ्स होते हैं, तो 1:6, 2:5, 3:4। ठीक है, ये हमने याद रखना है। तो हम या तो पंजाबी के लिए 1, 2, 3 पैराग्राफ्स लिख लें, या फिर हम लोग बाकियों के लिए
354 पैराग्राफ लिखते हैं। तो अब बात करते हैं। आफ्टर द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान, पंजाबी हैज़ बीन डेवलप्ड मच एज अ रीजनल लैंग्वेज, मोस्टली बिकॉज पंजाबीज इन कंपैरिजन टू अदर प्रोविंसेस वर मोर इन नंबर। द हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेड इट्स डेवलपमेंट ईजियर एज मोर पीपल अप्रोच्ड इट एंड हैड वाइडर सपोर्ट। Thus, Punjabi did become the most developed language of Pakistan because of the more number of population to reach and breach it. ठीक है, अब इसमें भी simplistic statement क्या थी? It has been developed much as regional language because Punjabi in comparison to other provinces were more in number. ये हमारी पहली simplistic statement होगी कि लोग ज़्यादा थे पंजाबी बोलने वाले, इसलिए developed. ये एक्सप्लेनेशन। द हायर नंबर ऑफ पॉपुलेशन मेड्स डेवलपमेंट ईजी एज मोर पीपल अप्रोच्ड इट एंड वाइडर सपोर्ट। ये एक्सप्लेनेशन हो गई। और फिर 10 पंजाबी बिकेम द मोस्ट डेवलप्ड लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान बिकॉज ऑफ मोर नंबर ऑफ पॉपुलेशन टू रीच एंड ब्रीच इट। ये हमारा हो गया एनालिसिस। तो इससे मुझे पहले पूरे नंबर मिल गए। ऑल्सो पंजाबी लिटरेचर एंड थिएटर लार्जली प्रमोटेड थ्रू आउट द पंजाबी थ्रू द रीजन थ्रू पंजाबी पोएट्स सच एज बुल्ले शाह एंड फरीद गंज शकर became widely known. Therefore, due to the widespread of Punjabi poetry and literature, Punjabi did become one of the most developed regional language of Pakistan. Now look at this. This is again a very simplistic example of how to carry your question in short, brief way. हमने बात क्या की? Simplistic statement क्या थी? Punjabi promoted throughout the region. Literature promoted throughout the region. फिर Punjabi poets became famous and लिटरेचर पंजाबी पोएट्स बिकेम फेमस एंड वाइडली नोन। ये हमारी डिस्क्रिप्शन होगी इसी चीज़ की। अगर लिटरेचर प्रमोट होता है तो ऑथर भी प्रमोट होगा, तो ये उसकी डिस्क्रिप्शन होगी। और फाइनल हमारा एनालिसिस था देयरफॉर ड्यू टू दिस वाइड स्प्रेड पंजाबी बिकेम वन ऑफ द मोस्ट डेवलप्ड लैंग्वेजेस ऑफ पाकिस्तान। हाउएवर, ये अब हमने जो रेशियो लिया है वो लिया है हमने 2:5 का, ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर। हाउएवर, पंजाबी इज़ नॉट द ओनली हाईली डेवलप्ड रीजनल लैंग्वेज इन पाकिस्तान सिंध लिटरेरी बोर्ड was set up in 1948 to promote Sindhi language. Thus, this helped in development of Sindhi as a language all over Pakistan, and it also became one of the prominent regional languages of Pakistan. Again, simplistic statement, description, analysis. ठीक है, simplistic statement क्या थी हमारी इधर? सिंध लिटरेरी बोर्ड सेटअप, और इसकी डिस्क्रिप्शन में हमारे पास आ गया टू प्रमोट सिंधी लैंग्वेज and helped in development of Sindhi language all over Pakistan. Thus, it became a prominent regional language of Pakistan. ठीक है. Also, Sindhi has become a language of media. Karachi radio and television channels as well as many Sindhi channels broadcast in Sindhi language. Thus, the channels contribute to the development of Sindhi as a regional language in Pakistan and are developing it as a media language. So, look how beautifully this is written. Sindhi has become a language of media. Simplistic statement. The description. ये इसको broadcast करते हैं. Description, and thus it became a regional language because people in Pakistan developing as a media language. तो ये आपका analysis हो गया. Alongside Pashto, which has played a really important role in the freedom struggle, was also boosted up after independence. Peshawar University was established, which became the center of Pashto promotion in Pakistan. Therefore, with the promotion of Peshawar University, Pashto also developed as regional language in Pakistan. हमने पहले बात की कि पश्तो को प्रमोट किया गया, फिर हमने बात की कि कैसे प्रमोट किया गया, और फिर हमने बात कर दी कि उसका एनालिसिस क्या हुआ, ठीक है. Pashto was also developed with the establishment of Pashto Academy in 1945. The academy published books and printed many of the types of writings in Pashto language. Thus, these publications that promoted Pashto language helped in its development as a regional language in Pakistan too. ठीक है, ये अगेन पश्तो के ऊपर ही हमने बात कर ली, और लास्टली हमने बलोची को ले लिया. तो हमने लिखे हैं जी 2 पॉइंट पंजाबी के, 2 पॉइंट सिंधी के, 2 पॉइंट पश्तो के, और 1 पॉइंट बलोची का. ऑलवेज बी वेरी टैक्टफुल व्हेन यू आर राइटिंग दीज पॉइंट्स. आप हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पहले रखा करें. ये हमारे ऐसे 7 पैराग्राफ पूरे हो गए. लास्टली, बलोची अनदर प्रोविंशियल एंड रीजनल लैंग्वेज पाकिस्तान विच स्प्रेड एंड गिवन एजुकेशन अबाउट बाय एस्टैब्लिशिंग द बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी क्वेटा विद सेपरेट बलोची स्टडी सेक्शन इज प्रेजेंट एंड बलोची इज taught as a subject. Thus, by educating people regarding Balochi developed over the years in Pakistan as a regional language. ये हमारा एनालिसिस है. ये तो आपको समझ आ गई होगी अब तक, ठीक है. जो हमारी सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट थी वो ये थी. लास्टली, बलोचिस्तान एंड द स्प्रेड एंड गिवन एजुकेशन बाय एस्टैब्लिशिंग द बलोची. ये एजुकेशन में सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट बाय एस्टैब्लिशिंग दिस ये डिस्क्रिप्शन. ये हमने एक ही लाइन में डिस्क्रिप्शन सिंपलिस्टिक स्टेटमेंट को पूरा कर दिया. दिस इज़ 1 सेंटेंस, ठीक है. तो ये मेरे पूरे 13 नंबर बने इधर तक, पूरे 13 नंबर,
ठीक है। जो इवैल्यूएशन होती है ना, उसको अभी के लिए आप लोग साइड पे रख दें, क्योंकि वो है हमारा थोड़ा सा ज़रा लेवल अहेड। इवैल्यूएशन इज़ समथिंग जो कि विल ऑलवेज बी अ मैटर ऑफ एन एग्जामिनर्स मूड। डिपेंड करता है कि सामने आपका एग्जामिनर कैसा बैठा हुआ है, एंड वो फिर आपको उसको किस किस्म की इवैल्यूएशन पसंद है। तो ये मैंने लैंग्वेज का पूरा चैप्टर इस वीडियो में कवर कर दिया है। ये एक और क्वेश्चन भी है, द प्रमोशन ऑफ लीगल regional languages between 1947 and 1999 has been more successful than the national language. Do you agree? Give reason for your answer. National language है हमारी उर्दू। अपने अग्री या डिसएग्री करना है। L3 पे मैंने सारी रीजनल लैंग्वेजेस रखी जो कि 4 हैं, और L4 पे मैंने सारी नेशनल लैंग्वेज के पॉइंट रखे जो कि 3 है। तो मैंने 4:3 का रेशो लिया। पहले रीजनल लैंग्वेजेस कवर किया और फिर नेशनल लैंग्वेज कवर किया। ऐसे ही आपने अपने क्वेश्चन को पार्ट करना है और उससे बात करनी है। मैंने ये 4:3 रखे, मैंने डू नॉट किया, नो किया, मैंने कहा आई डू नॉट अग्री। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आपने कैसे लेके चलना है, लेकिन योर पॉइंट शुड ऑलवेज बी वेरी क्लैरिफाइड। आपका जो पीछे जो आप पॉइंट्स देंगे वो हमेशा आपके स्टैंड को सपोर्ट करने चाहिए। बेशक मैंने L3 के ज़्यादा पॉइंट्स लिए, लेकिन वो मैंने इसलिए लिए क्योंकि मैंने हर लैंग्वेज के एक पॉइंट लिए, और L4 में मैंने सिर्फ उर्दू के 3 पॉइंट्स लेके उसको ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करके मैंने लिखा है डू नॉट अग्री, आई एग्री, उर्दू was more successful than the language. Why? Let's suppose we push them why तो 1973 में it turned out to be, ये मेरा evaluation होगा कि in my opinion, should I grab a pen or is a pencil all right? मैं भी कैमरे से पूछ रही हूँ। nice. In my opinion, Urdu was more successful as a language because not only the official language in use was Urdu, because not only was Urdu the official language of the state, but by 1973 it was stated to be, ये ऑफिशियल लैंग्वेज का वर्ड यूज़ होना चाहिए यहाँ पे, यूज़ होना बट नॉट वेज, इसको ना थोड़ा सा वो करें। इन माई ओपिनियन दिस वाज मोर सक्सेसफुल एज अ लैंग्वेज बिकॉज नॉट ओनली विज उर्दू दी मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज करते हैं इसको, मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, बट बाय 1973 इट वाज स्टेटेड टू बी, इट वाज आल्सो स्टेटेड टू बी दी ऑफिशियल लैंग्वेज और ऑफिशियल मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन दी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अब ये थोड़ा रफ सा मैंने लिखा है, बहरहाल यू गाइस गेट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे ओवर हियर, राइट, कि उर्दू जो थी मैंने अपने वैल्यूएशन में मैंने एक अलग पॉइंट रखा है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स मुख्तलिफ थे, एवेल्यूएशन में मैंने एक डिफरेंट पॉइंट लेके लिखा है कि मैं मानती हूँ कि उर्दू जो थी इट वाज मोर सक्सेसफुल दैन द रेस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस बिकॉज नॉट ओनली वाज इट द मोस्ट वाइडली यूज्ड लैंग्वेज बट इट वाज आल्सो स्टेटेड टू बी और इट वाज आल्सो मेड द ऑफिशियल एंड नेशनल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री इन द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन, therefore stating it to be the most important language of the state. So everyone, this was episode 15 of Study Guide. I hope you guys understood most of the lecture. I hope you did because it was an important lecture. Languages का जो chapter है वो इतना often नहीं आता. You will hardly get a question on this chapter. मतलब it's 1/4 chance होता है इसका, probability होती है, but it is again a very important chapter to understand. इसको लिखना इज़ far more difficult than whether it comes or not. ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज की डेवलपमेंट जो होती है, इसका जो आंसर होता है वो लिखना मुश्किल हो जाता है बिकॉज देयर नॉट अ लॉट ऑफ पॉइंट्स एंड इवन देयर आर पॉइंट्स एंड देयर इज़ नॉट अ लॉट ऑफ एनालिसिस। वो एक ही एनालिसिस आ जाता है कि जी ऐसे प्रमोट हुई, ऐसे प्रमोट हुई, ऐसे प्रमोट हुई है। देयरफॉर आई वांटेड टू गिव यू, शो यू गाइस और रीड यू गाइस और मेक यू गाइस लर्न फ्रॉम क्वेश्चंस, रिटन आंसर्स जो कि मार्क्ड हैं बाय टीचर और जो कि सर्टिफाइड हैं कि दे आर द राइट आंसर। सही है, तो इसलिए आई होप यू गाइज caught on to the gist and you understand. If there is still any query or question, then you can always comment down below. Best of luck with your preparations.